औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे और अच्छी सेहत को एंजॉय कर रहे होंगे। सो वेलकम बैक टू द लेक्चर नंबर 18 फॉर द कोर्स ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। आज का हमारा जो लेक्चर है वो प्रीवियस लेक्चर के साथ कनेक्टेड है। प्रीवियस लेक्चर में हमने पैराबोलिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने का जो तरीका था वो डिस्कस कर लिया था। आज के लेक्चर का हमारा टास्क होगा कि एलिप्टिकल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरह से कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया किया जा सकता है आई मीन। So we will discuss the basic steps and apply these steps on a sample problem. Our objective is only to convert an elliptical PDE to its equivalent canonical form. So canonical and non-normal forms. Uh, why these are necessary? Because they convert a complicated partial differential equations to relatively a simple form, and then the solution procedure become more easy. So consider this second order partial differential equation in the standard form. This equation is this equation may be hyperbolic, parabolic, or elliptical, and these three properties depends on the discriminant of the problem. If the discriminant b square minus 4ac is less than 0, means if this quantity is negative, then the upper equation is called elliptical equation. So आगे जितने भी स्टेप्स हम पढ़ रहे हैं तो वो स्टेप्स एलिप्टिकल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पे एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि जो प्रॉब्लम है आपके साथ हैंड पे, क्या वो प्रॉब्लम एलिप्टिकल है या एलिप्टिकल नहीं है। अगर एलिप्टिकल हुआ तो आपने ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टेप नंबर 1, कंस्ट्रक्ट द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले आपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस बनाने हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस के लिए आपने ऑक्सिलरी इक्वेशन ए लेमडा स्क्वायर माइनस बी लेमडा प्लस सी इज इक्वल टू 0 ये इक्वेशन कंसिडर करना है। यहाँ पर नेगेटिव साइन आप माइंड में रखिए कि यहाँ पर आपने नेगेटिव साइन यूज करना है। ठीक है, ए बी और सी जो पैरामीटर्स नजर आ रहे हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन में, सो यू विल कलेक्ट दीज पैरामीटर्स फ्रॉम दिस मेन प्रॉब्लम। Okay, after you collect these parameters, then you will substitute these parameters into this auxiliary equation and then calculate the discriminant. And of course the discriminant will be less than 0 because the discriminant of this equations become minus of b whole square minus 4ac, which means b square minus 4ac, which is always negative for the elliptical problems. So uh, of course if the problem is elliptical, then the auxiliary equation may have imaginary root because b square minus 4ac is negative, then the square root of b square minus 4ac may of course contain iota. So in this case we have two imaginary roots. Assume that one root is lambda 1 plus iota lambda 2, and of course the other root will be iota 1 minus iota lambda 1 minus iota lambda 2. These are two complex roots of this auxiliary equations. Now from these roots you will construct two equations from which you can construct the characteristic equation. So consider the equation of the characteristic equations are dy by dx is equivalent to the first root plus dy by dx is equivalent to the other root. Okay, so you can select the first equation dy by dx is equal to lambda 1 plus iota lambda 2. You can integrate this thing. You can separate the variable. You can bring dx in this side, and you will integrate this side with respect to y and this side with respect to x. As this integrand contains the imaginary part iota, so we are strongly expecting that the solution will be also imaginary, also complex, means it will also contain the real part and the imaginary part. So the real part of the solution of this problem will be represented by f1 of xy, and the imaginary part of the solution of this problem will be represented by f2 of xy. We will fix this quantity equal to c1, which is the constant of integration. So after calculating the solution of this problem, you will assume that xi is equal to
f1 plus f2 xy. iota f2 xy here. यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है तो करेक्शन कर ले यहाँ पर f1 प्लस iota f2. अच्छा, हमारे साथ दूसरा जो इक्वेशन है dy by dx is equal to lambda 1 minus iota lambda 2. तो इसका जो सोल्यूशन बनेगा वो इस तरह बनेगा f1 of xy minus iota f2 of xy is equal to c1. ठीक हो गया. तो जो ये जो सोल्यूशन है इसको हमने रिप्रेजेंट कर लिया ईटा से. ईटा इज इक्वल टू f1 of xy minus iota f2 of xy. ठीक है, यहाँ पर करेक्शंस कर लिए. यहाँ पर आयोटा होगा. तो हमारे साथ जाय और ईटा के दो इक्विवेलेंट फॉर्म्स आ गए. अब हमने जाय और ईटा के जगह दो और वेरिएबल्स हमने अल्फा और बीटा इंट्रोड्यूस करने हैं. इस तरह से इंट्रोड्यूस करने हैं कि जो रिजल्टिंग एक्सप्रेशन है वो हमारे साथ इंतहाई सिंपल आ जाए. तो अगर हम अज्यूम कर ले कि अल्फा इज इक्वल टू 1/2 जाय प्लस ईटा, तो ऑटोमेटिकली अगर हम जाय और ईटा में इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 1/2 दिस इज द वैल्यू ऑफ जाय plus this is the value of eta. So this thing becomes alpha becomes 1/2 into 2 times f1. ठीक है, ये दोनों कैंसल हो जाएंगे तो ये 2f1 बनेगा. 2f1 डिवाइड बाई 2 मीन्स अल्फा इज इक्वल टू f1. एक इक्वेशन ये बन गया. और बीटा हमने इक्वल रखना है. बीटा इज इक्वल टू 1/2 आयोटा इंटू जाय माइनस ईटा. ठीक है, तो जब हम जाय और ईटा में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बीटा हमारे साथ इक्वलेंट आएगा f2 ऑफ xy के. ठीक है, अभी हमने x और y को अल्फा और बीटा में चेंज करना है. ठीक है, प्रीवियस हाइपरबोलिक फॉर्म में हमें जाय और ईटा के इस तरह से एक्सप्रेशन मिल रहे थे जिससे हम x और y को जाय और ईटा में कन्वर्ट करके जो अपना मकसद है वो पूरा कर सकते थे. अब यहाँ पर हमारे साथ जाय और ईटा के जो एक्सप्रेशन है वो कम्प्लेक्स फॉर्म में हमें मिल रहे हैं. ठीक है, तो इस कम्प्लेक्सिटी को दूर करने के लिए हम जाय और ईटा की जगह दो और वेरिएबल अल्फा और बीटा इस तरह से इंट्रोड्यूस कर लेंगे कि अल्फा इक्वलेंट हो 1/2 जाय प्लस ईटा के और बीटा इक्वलेंट हो 1/2 आयोटा इंटू जाय माइनस ईटा के. तो इन दोनों एजम्पशन से डायरेक्टली हमें अल्फा इक्वलेंट मिलेगा f1 ऑफ xy के और बीटा इक्वलेंट मिलेगा f2 ऑफ xy के. Kindly note that f1 and f2 these are the real and imaginary parts of the characteristic equation. अब थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, x और y को चेंज करना है अल्फा और बीटा में. अल्फा और बीटा के जो शेप्स है वो हमारे साथ मौजूद है. अल्फा का एक्सप्रेशन भी हमें पता है और बीटा का एक्सप्रेशन भी हमें पता है. ठीक है, तो अल्फा x और y को जब हम अल्फा और बीटा में कन्वर्ट करेंगे तो जो हमारा सोल्यूशन होगा u which depends on x and y becomes a function u which depends on alpha and beta. So keeping these two notations in mind, when we calculate u x means the derivative of u with respect to x, we are actually making the derivative of this term. We are making the use of the chain rule. So partial u or partial alpha into partial alpha or partial x plus partial u or partial beta into partial beta or partial x. ठीक है, चेन रूल अप्लाई हो जाएगा. u अल्फा और बीटा पर डिपेंडेंट है तो u का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए हमें चेन रूल का यूज करना पड़ेगा. ठीक है, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ux. Now you have to calculate the expression for uy. So using the same strategy and the chain rule in the same fashion, you can calculate uy is equal to u alpha y plus u beta into beta y. अच्छा, हाइपरबोलिक पैराबोलिक प्रॉब्लम्स में भी हमने ये एस्टिमेट्स कैलकुलेट किए हुए थे. हमारे साथ अल्फा और बीटा की जगह ईटा और जाय था. ठीक है, अब u डबल एक्स जो क्वांटिटी है यानी इस क्वांटिटी का विद रिस्पेक्ट टू x अगेन डेरिवेटिव. तो फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड प्लस सेकंड टर्म डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये सारी टेक्निक्स प्रोडक्ट रूल और चेन रूल कंबाइंडली अप्लाई हो जाएंगे इस स्टेप पे और हमें u डबल एक्स का एक्सप्रेशन मिलेगा u
डबल अल्फा इंटू अल्फा एक्स होल स्क्वायर प्लस 2u अल्फा बीटा। अच्छा, ये बीटा भी सबस्क्रिप्ट में है, ठीक है। यानी u अल्फा बीटा मींस द डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू अल्फा पार्शियल स्क्वायर u और पार्शियल अल्फा पार्शियल बीटा, ठीक है। अल्फा एक्स बीटा एक्स प्लस पार्शियल u पार्शियल स्क्वायर u और पार्शियल बीटा एक्स होल स्क्वायर प्लस पार्शियल u और पार्शियल अल्फा इनटू सेकंड डेरिवेटिव ऑफ अल्फा विद रिस्पेक्ट टू x प्लस पार्शियल u और पार्शियल बीटा इनटू सेकंड डेरिवेटिव ऑफ बीटा विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, इन्हीं गाइडलाइंस पे u डबल वाई का एक्सप्रेशन मिलेगा, u डबल अल्फा मल्टीप्लाइड बाय द कांस्टेंट प्लस 2u अल्फा मल्टी बीटा। यहाँ पर ये अल्फा बीटा दोनों सबस्क्रिप्ट में है, ठीक है। थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक आ गई है यहाँ पे, तो करेक्ट कर ले इसको। प्लस u डबल बीटा इंटू बीटा वाई होल स्क्वायर प्लस u अल्फा अल्फा डबल वाई प्लस u बीटा इंटू बीटा डबल वाई। हमारे साथ इक्वेशन में u एक्स वाई मीन्स द स्प्लिट डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x एंड y b एंड 1 है, तो वो एस्टिमेट भी कैलकुलेट कर लेंगे। सेम टू सेम हमने क्या करना है, हमने प्रोडक्ट रूल और चेन रूल अप्लाई करना है। इस एक्सप्रेशन का विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हमें ये जो एक्सप्रेशन है ये हमें एक्सप्रेशन मिल जाएगा। अब u डबल एक्स u डबल वाई u एक्स वाई u x एंड u y, ये सारे एस्टिमेट्स हमें मालूम हो गए हैं। हम अगर इन सारे एस्टिमेट्स को हमारा मेन जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जब हम उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें इसी शेप में पार्शियल स्क्वायर u और पार्शियल अल्फा स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर u और पार्शियल बीटा स्क्वायर इज सम फंक्शन ऑफ अल्फा बीटा u अल्फा एंड u बीटा। इन 5 वेरिएबल्स का कोई फंक्शन राइट हैंड साइड पे आ जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड पे ये दोनों एस्टिमेट्स ऑटोमेटिकली ये दोनों एस्टिमेट्स बन जाएंगे, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन बनेगा, जो इनसर्कल्ड इक्वेशन है, ये इक्वेशन मेन जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका कैनोनिकल फॉर्म कहलाता है, ठीक है। दिस इज द कैनोनिकल फॉर्म फॉर द मेन प्रॉब्लम। अब हमने क्या करना है, इन स्टेप्स को एक स्पेसिफिक एग्जांपल पे अप्लाई कर देना है, ठीक है। सो कंसीडर द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन बाय u डबल एक्स प्लस एक्स स्क्वायर u डबल वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि क्या ये इक्वेशन एलिप्टिकल है या एलिप्टिकल नहीं है। तो ये कंफर्म करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म जो सेकंड ऑर्डर पीडीई का स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके साथ कंपेयर करना होगा। सो बाय कंपेयरिंग दीज टू इक्वेशंस वी सी दैट the value of a in this expression is 1 and the value of b in this expression is 0. In fact, there is no term which contains uxy, so it means that the uxy term is multiplied by 0, so we will say that b is equivalent to 0. The value of c, which is the coefficient of u double y, is x square. The coefficient d, which is the coefficient of ux, is again absent in this expression, means d is equal to 0. Similarly, E, F and G, all these quantities are 0 in the given partial differential equation. We are not interested in D, E, F and G, whatever they are, ये जो भी होंगे, ठीक है। हमें सिर्फ मकसद है A, B और C से, क्योंकि A, B और C से ही डिसाइड होता है कि जो प्रॉब्लम है वो एलिप्टिकल है या एलिप्टिकल नहीं है। So calculating these the value of the discriminant b square minus 4ac इक्वलेंट आ रहा है माइनस 4x² के, विच इज ऑलवेज लेस देन 0, क्योंकि x² पॉजिटिव होता है हमेशा और नेगेटिव साइन यहाँ पर ये इंडिकेशन हमें बता रहा है कि ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी x की सारी नॉन जीरो वैल्यूज के लिए ये क्वांटिटी क्या होगी, नेगेटिव होगी। जिससे ये पता चलता है कि ये जो प्रॉब्लम है हमारे साथ, ये कौन सा प्रॉब्लम है, ये एलिप्टिकल एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हमने ये जो सारे स्टेप्स है, ये सारे स्टेप्स इस पे अप्लाई करने हैं। The first step is that you will construct the auxiliary function. The auxiliary function is a lambda square minus b lambda plus c is equal to 0. Now use these estimates, the value of a, b, c and the auxiliary function. You will get lambda square minus 0 times lambda plus x square is equal to 0, which means lambda square is equal to x square, and it have only two roots. Lambda is equal to iota x
और माइनस आयोटा एक्स। ठीक है, दो रूट्स इस तरह आ गए कि इस एक का रियल पार्ट है ही नहीं और रियल पार्ट इनका जीरो है और इमेजिनरी पार्ट है इनका एक्स। तो दो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारे साथ बन गए, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आयोटा एक्स और dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस आयोटा एक्स। ठीक हो गया। बहुत ही सिंपल से प्रॉब्लम्स है, हमें क्या करना है, सिंपली dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आयोटा एक्स, इनके वेरिएबल्स को सेपरेट करना है, dy और dx को हम इस साइड पर ले आएंगे। ठीक है, नाउ इंटीग्रेट दिस एक्सप्रेशन, इसका इंटीग्रल आप कैलकुलेट कर ले तो इसका इंटीग्रल इक्वलेंट है y और राइट हैंड साइड पे बनेगा आयोटा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस सी नॉट। ठीक है, अब इस इक्वेशन को आप मल्टीप्लाइड कर ले 2 से तो आपको ये क्वांटिटी मिलेगी 2 मल्टीप्लाइड बाय y माइनस आयोटा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स सी नॉट, 2 टाइम्स सी नॉट। ठीक है, तो 2 टाइम्स सी नॉट, क्योंकि सी नॉट एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो 2 टाइम्स सी नॉट भी एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो 2 टाइम्स सी नॉट को मैं रिप्रेजेंट कर लूंगा C1 से, तो ये हमारे साथ एक एक्सप्रेशन आ गया, f1 ऑफ एक्स वाई माइनस आयोटा f2 ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू C1। ठीक है, तो जाय को हमने फिक्स रखना है 2y माइनस आयोटा एक्स स्क्वायर के। अब दूसरा जो एक्सप्रेशन है ऑक्सिलरी फंक्शन, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस का, तो वो है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस आयोटा एक्स। अपॉन इंटीग्रेटिंग दिस क्वांटिटी आई गेट 2y प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स सी अल्फा सी ए। ठीक है, सो सी ए यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, इस इक्वेशन को जब हम 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो इस इक्वलिटी में 2 टाइम्स सी ए बनेगा। इफ सी ए इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट it means 2 times CA is also arbitrary constant, so I will fix 2 times CA is equal to C2। ठीक है, तो ये दूसरा हमारे साथ एक्सप्रेशन बन गया। So fix eta is equal to 2y plus iota x square and we have already collected xi is equal to 2y minus iota x square। ठीक है, अब अल्फा को अगर हम अज्यूम करेंगे 1/2 into xi plus eta, we will get the value of alpha is equal to y and the value of beta is equal to माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर ले, 2y बनेगा। ठीक है, क्योंकि 2y और 2y एड अप हो जाएंगे तो 4y डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 2y। ठीक है, सो अल्फा इज बेसिकली 2 मल्टीप्लाइड बाय y एंड बीटा इज बेसिकली माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ कैलकुलेट the necessary quantities alpha x, 2y का with respect to x derivative 0, अल्फा का with respect to x second derivative 0, अल्फा का with respect to y फर्स्ट derivative है हमारे साथ 2 बनेगा क्योंकि 2y है, और अल्फा y का with respect to y अगेन derivative इक्वलेंट होगा 0 के। इस तरह बीटा इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर से बीटा x बनेगा माइनस 2x, बीटा डबल x इज इक्वल टू माइनस 2, बीटा y इज इक्वल टू 0 एंड बीटा डबल y इज इक्वल टू 0। ये एस्टिमेट्स क्योंकि u डबल एक्स और u डबल y को जब हम u अल्फा और u बीटा की शेप में लिखेंगे तो ये सारी चीजें हमें यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, अब थर्ड जो स्टेप है कि चेंज ऑल द वेरिएबल x एंड y इनटू अल्फा एंड बीटा। वी हैव कैलकुलेटेड द एक्सप्रेशन ऑफ u डबल x जो कि इक्विवेलेंट था u डबल i इनटू अल्फा x होल स्क्वायर प्लस 2u अल्फा बीटा इनटू अल्फा x बीटा x प्लस u डबल बीटा इनटू बीटा x स्क्वायर प्लस u अल्फा इनटू अल्फा डबल x प्लस u बीटा इनटू बीटा डबल x। इस इक्वेशन में हमने अल्फा x बीटा x बीटा एक्स स्क्वायर अल्फा डबल एक्स और बीटा डबल एक्स इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो अल्फा एक्स हमारे साथ है 0, इस तरह अल्फा एक्स 0, बीटा एक्स है माइनस 2x, बीटा एक्स है माइनस 2x होल स्क्वायर
इस तरह अल्फा डबल एक्स इज 0 एंड बीटा डबल एक्स इज -2, सो आई गेट यू डबल एक्स इज इक्वल टू 4x स्क्वायर यू डबल बीटा। ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी, this is 4x square u double beta minus 2 times u beta, which is this thing. Okay, so this is the estimate of the u double x. Now we have to calculate u double y also in terms of alpha and beta. So using the expression of u double y and making the substitution of these parameters, we get u double y is equal to u double alpha multiplied by 2 square, because alpha y is equal to 2. इस तरह से बीटा वाई हमारे साथ 0 है, बीटा वाई भी 0 है, अल्फा डबल वाई भी 0 है, इस तरह बीटा डबल वाई भी 0 है। तो हमारे साथ सिर्फ ये एक क्वांटिटी नॉन जीरो क्वांटिटी बनती है, विच टेल्स अस दैट द एस्टिमेट यू डबल वाई इज इक्वल टू 4 टाइम्स यू डबल अल्फा। ठीक है, तो यू डबल एक्स और यू डबल वाई ये दोनों एस्टिमेट हमें मालूम हो गई। अब हमने क्या करना है, इन एस्टिमेट्स को सब्स्टिट्यूट कर देना है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में, जो प्रॉब्लम हमने कंसिडर किया हुआ है। यू डबल एक्स की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे और यू डबल वाई की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो जो फाइनल शेप है कैनोनिकल फॉर्म का, वो हमें आई होप सो के मिल जाएगा। So using these estimates in the PDE, we get the value of u double x is 4x square u double beta minus 2u beta plus x square, and the value of u double y is 4 times u double alpha. Now rearrange these expression, minus 2u beta will come to this side and become a positive. Similarly, we can take common 4x square from this term, the first term and the third term. So we get 4x square into u double beta plus u double alpha is equal to 2 times u beta। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक्सप्रेशन x स्क्वायर हमें शो हो रहा है। तो x स्क्वायर हम अगर बीटा की वैल्यू को देख ले, बीटा की वैल्यू है माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी माइनस बीटा, माइनस बीटा आ जाएगा इस साइड पे ये नेगेटिव साइन के साथ। ठीक है, और ये 2 इस 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 यहाँ पर बचेगा, वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा इधर। तो जो हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है u डबल एक्स प्लस एक्स स्क्वायर यू डबल वाई इज इक्वल टू 0, वो हमारा कन्वर्ट होगा कैनोनिकल फॉर्म में, जो कि u डबल अल्फा प्लस यू डबल बीटा इज इक्वल टू माइनस यू बीटा डिवाइड बाई 2 बीटा। ठीक है, तो अच्छा, दोनों प्रॉब्लम्स में डिफरेंस क्या है? एक प्रॉब्लम में b विद रिस्पेक्ट टू x सेकंड डेरिवेटिव इन्वॉल्व है और विद रिस्पेक्ट टू y सेकंड डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, और दूसरे प्रॉब्लम में b विद रिस्पेक्ट टू अल्फा सेकंड डेरिवेटिव इन्वॉल्व है और विद रिस्पेक्ट टू बीटा सेकंड डेरिवेटिव इन्वॉल्व। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो कोएफिशिएंट है हमारा, ये वेरिएबल है हमारे साथ, और यहाँ पर जो कोएफिशिएंट्स है वो कोएफिशिएंट्स हमारे साथ कांस्टेंट 1 बन रहे हैं। ठीक है, तो द रीजन एज वी कैन अप्लाई सेपरेशन ऑफ वेरिएबल ओवर दिस प्रॉब्लम। ठीक है, इस पे आप सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का जो तरीकाकार है वो अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि जो कोएफिशिएंट्स है वो आपके साथ कांस्टेंट है, और इस पे हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का जो कानून है वो अप्लाई नहीं कर सकते। सो यू सी दैट आफ्टर कन्वर्जन टू द कैनोनिकल फॉर्म, समटाइम्स द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस गेट मोर एंड मोर सिंपलर। ठीक है, so I think this is enough for today. Inshallah, in the next class we will discuss the hyperbolic problems and the techniques for conversion of hyperbolic problem to the canonical shape. Okay, so I think it is enough for today. Stay home, stay safe. Thank you. Allah Hafiz.